A symbol can have the constant value or a symbol can have on various numerical values. Now, the symbol which are having the constant value is known as the constant, and the symbol whose value varies, that symbol is known as a variable. Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Today we are going to discuss the new chapter of mathematics, that is algebraic expression and its identities. The very first term, before discussing the algebraic expression, what is algebraic expression, I am explaining to you few terms. First term is constant. Constant means a symbol which is having a fixed value, whose value is not changing. Like 5. 5 is fixed value. A constant means particular that is not changing with time, or that cannot be changed. 5 means 5. 4 means 4. These are known as the constant values. ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? Constants कहा जाता है. Now, if I write x, a symbol I write on the board is x. This x may take different values. Either this x value may be 1, maybe 5, maybe 10, depending upon the conditions. Then this symbol is not as a variable. इसको क्या कहा जाएगा? Variable. The symbol which can take various numerical values, that symbol is known as variable, and the symbol which is having a fixed value, that is known as a constant. उसको क्या कहते हैं? Constant कहते हैं. अब बात करते हैं algebraic expressions की. Algebraic expressions क्या होते हैं? Algebraic expressions. Algebraic expressions contain this constant plus this variable plus basic mathematical operations. Mathematical operations. Symbol. Basic mathematical operations are plus, minus, multiplication and division. These combinedly form an expression that is known as algebraic expression. उसको क्या कहा जाता है? Algebraic expression कहा जाता है. Now, if I am talking about, before discussing the types of algebraic expression, I am taking one example like 5x plus 3y minus 4z. Right? This expression I am taking. In this, if I am talking about that x is having the coefficient 5 here in the first term, in the second term y is having the coefficient 3, and in the third term z is having the coefficient -4. ठीक है, but here I am repeating, when I am explaining this, I am repeating a term, a word that is known as term. Term means a expression which is separated by expression जिसके अंदर हम क्या करें, प्लस और माइनस से अगर सेपरेट करें तो क्या कहलाता है? वो टर्म कहलाती है. अगर प्लस और माइनस से इसको सेपरेट किया तो दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, this is the second term of the expression, and this is the third term of the expression. These are known as the terms. So basically the term is various parts of algebraic expression which can be separated by the sign of plus, addition or subtraction. ठीक है, they are known as terms. उनको क्या कहा जाता है? terms कहा जाता है. Now, अब इसके बाद क्या आती है बात? types of expression. First type is monomial expressions. Second is binomial, and next is polynomial. Mono means single. An algebraic expression containing only one term. मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है 1, बाई का मतलब होता है 2,
और पॉली का मतलब होता है मोर देन टू, मोर देन टू। ठीक है, मोनोमियल का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, द एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली वन टर्म। बाइनोमियल, द एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली टू टर्म्स। And polynomials expression which are having more than two terms, more than two terms, that expression is known as polynomial. Now if I am writing on the board that 5x square, now this is a monomial or a binomial or a polynomial. This is as the expression is not separated by any plus or minus sign, so this is a monomial expression because as it contains only one term, so this is a monomial expression. Now if I am writing 4x plus 3x square, now here the algebraic expression is separated by plus or minus sign. Here plus sign is there, so this is known as the first term. इसको हम क्या कहेंगे, first term कहेंगे. And this is the second term. ये second term कहलाएगी. So the expression contains two terms, therefore it is known as the binomial expression. Binomial expression. Now if I am writing here that 4x plus 3y, here also this is the first term and this is the second term, so this is also the binomial expression. There are different types of binomial expressions हो सकते हैं. Binomial और monomial जो है वो classification किस basis पे की गई है कि algebraic expression में हमारी number of terms जो हैं वो कितनी है. अगर एक term है तो that is monomial expression, और दो term है तो उसको बाइनोमियल कहेंगे, और दो से ज्यादा टर्म है तो दैट एक्सप्रेशन इज नोन एज द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन. नाउ अब आपने पढ़ लिया कि एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं. ठीक है, हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स अवेलेबल. नाउ बिफोर डिस्कसिंग द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज algebraic addition of algebraic expression, one more term I would like to introduce, that is like term and unlike terms. Like terms and unlike terms. I write an expression 4a square b plus 3ab square plus 6ab minus 5a square b. Like terms means the expression which contains same number of variables with the same degree. डिग्री क्या होती है इसकी, देखो पावर a की पावर यहाँ पर कितनी है 2 है, यहाँ पर मैं लिखूं तो a की पावर कितनी है 2 है और b की पावर कितनी है 1 है. यहाँ मैं लिखूंगी तो a की पावर 1 है और b की पावर कितनी है 2 है. इफ आई एम एक्सप्रेसिंग द पावर्स, ठीक है, यहां पर लिखेंगे तो a की पावर क्या है 1 है, b की पावर कितनी है 1 है, यहां पर लिखूंगी a की पावर 2 है और b की पावर कितनी है 1 है. तो जहां पर वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो सेम होती है, यहाँ लाइक इस टर्म में a की पावर 2 है, b की पावर 1 है, एंड द लास्ट टर्म इज ऑल्सो a की पावर 2 है और b की पावर 1 है. तो दीज टर्म्स मीन्स 4a square b एंड minus 5a square b, these are like terms. ये कहलाती हैं like terms. ठीक है, अब यहां देखें 3ab square and 6ab both are having the different powers. a की पावर अलग है, a की पावर दोनों में सेम है पर b की पावर अलग है. ठीक है, तो पावर ओवरऑल जो है वो क्या हो गई, अलग हो गई. तो इट मीन्स 3ab square and 6ab are unlike terms. They are known as
अनलाइक टर्म्स। अब जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो परफॉर्म करना होता है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या किया जाता है, जो लाइक टर्म्स होती हैं उनको ऐड किया जाएगा या उनको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अनलाइक टर्म्स जो होती हैं उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब भी एक्सप्रेशन के अंदर आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई क्या करना है कि उस एक्सप्रेशन में लाइक टर्म्स कौन सी हैं और फिर अनलाइक टर्म्स कौन सी हैं। तो लाइक टर्म्स जो हैं उसके ऊपर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब एक चीज और है उससे पहले कि अगर मैं यहां पर कॉफिशिएंट निकालने को कहूं इसके अंदर, ठीक है, मान लो मैंने कॉफिशिएंट निकालने के लिए कहा कि ए बी का जो कॉफिशिएंट है वो क्या होगा, तो ए बी का कॉफिशिएंट जो है, ए बी का छोड़ो, मैंने फर्स्ट टर्म छोड़, वो बाद में डिस्कस करती हूँ ए बी का। मैंने मान लो कि फर्स्ट टर्म में मैंने एक्सप्रेशन लिखने को कहा बी का कॉफिशिएंट क्या है। ठीक है, बी का कॉफिशिएंट फर्स्ट टर्म में क्या है, 4a²। कॉफिशिएंट ऑफ बी, कॉफिशिएंट ऑफ बी लिखना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म में कॉफिशिएंट ऑफ बी क्या है, 4a² है। सेकेंड टर्म में कॉफिशिएंट ऑफ बी क्या है, बी सेकेंड टर्म जो है उसमें बी जो है ही नहीं, b² है। ठीक है, तो यू कैन नॉट राइट इट एज अ कॉफिशिएंट ऑफ बी, वहां पर आप कॉफिशिएंट ऑफ बी जो है वो डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो यहां पर नहीं आएगा। थर्ड टर्म के अंदर अगर मैं कॉफिशिएंट ऑफ बी निकालूंगी तो दैट कम्स आउट टू बी 6a, और फोर्थ टर्म में अगर मैं कॉफिशिएंट ऑफ बी निकालूंगी दैट कम्स आउट टू बी -5a²। ठीक है, इस तरीके से आप कॉफिशिएंट जो है वो किसी टर्म के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। नाउ इफ आई से फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ ए बी का जो कॉफिशिएंट है वो क्या होगा, तो ए बी जो टर्म है वो मेरी किस में आ रही है, जो थर्ड टर्म है उसके अंदर आ रही है, तो उसका कॉफिशिएंट जो है वो क्या होगा, 6 होगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मान लो आपको एक कोई मोनोमियल एक्सप्रेशन दे रखा है और उसके अंदर आपको कहा जाए कि कॉफिशिएंट जो है वो फाइंड आउट करना है। लेट यहाँ पर मोनोमियल टर्म जो है वो मैंने ले लिया 3ab² ही है। (3a² cb). This is the monomial term. Now if I say write down the coefficient of c in this expression, coefficient of c जो है वो आपको लिखना है क्या होगा, तो coefficient of c is equal to, c को छोड़ दो बाकी जो भी बच गया वो coefficient हो गया, that is equal to 3a² b। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। Now the next is, these are the basic terms related to the algebraic expression. Today we are not going to discuss about the identities. Firstly we describe how the algebraic expressions are added and subtracted. Today we are going to discuss about that. The first topic of today is addition of algebraic एक्सप्रेशन। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का हमें क्या लिखना है, एडिशन करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो वेरी फर्स्ट टर्म, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज एड 7x² - 4x + 5 - 3x² + 2x - 1 and 5x² - x + 9. There are two ways to solve this question. One is you can write the first expression, that is 7x² - 4x + 5. फर्स्ट एक्सप्रेशन आपने लिख लिया। सेकेंड एक्सप्रेशन में क्या करो, आप जो लाइक टर्म्स हैं उसके नीचे वही टर्म्स लिखते जाओ, लाइक -3x², दैट इज लाइक टर्म विद दिस। ठीक है, 2x इज लाइक टर्म विद दिस, -1 इज दिस। ठीक है, फिर थर्ड एक्सप्रेशन देखो, उसमें फर्स्ट लाइक टर्म इज 5x², सेकेंड इज -x, थर्ड वन इज +9। ठीक है, इस तरीके से आप लिखो। अब इसको डायरेक्टली आप ऐड कर दो, 7 में से 3 गया, 4 बचेंगे, 4 + 5 9x²। ठीक है, -4 and -5, -x is -5, -5 + 2, तो इट मीन्स -3x। 9 + 5 is 14,
14 माइनस 1 इज 13, साइन इज प्लस साइन। जो भी नंबर के साथ, बड़े वाले नंबर के साथ जो भी साइन होगा वही साइन आपको नीचे पुट करना। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द आंसर। अदर वे इज कि आप क्या करो, 7x² माइनस 4x प्लस 5 प्लस करना है आपको, तो प्लस और माइनस माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 1 प्लस 5x² माइनस x प्लस 9। अब लाइक एक्सप्रेशंस जो हैं उनको क्या करना है, आपने सेपरेट आउट करना है। 7x² माइनस 3x, 7x² लिख लिया माइनस 3x² लिख लिया प्लस 5x²। ठीक है, साथ साथ टिक लगाते चलना ऊपर पेंसिल से, ठीक है, जिससे कि आपका कोई भी टर्म जो है वो लेफ्ट आउट ना रह जाए, अदरवाइज योर आंसर विल बी रॉन्ग। नाउ द सेकेंड टर्म इज माइनस 4x प्लस 2x minus x. Now the third term is plus 5 minus 1 and plus 9. हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो तो वही आंसर आएगा मेरे पास जो सेम उस मेथड से आया था, 9x² minus 3x plus 13. In this way you can solve the question. Now the next question is क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 5x² माइनस 1/3x प्लस 3 कॉमा 3x² प्लस 6 एंड ऐड करना है हमें एंड 2x माइनस 2। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको दे रखा है और आपको ऐड करना है। तो पहला तो वही क्वेश्चन, वही तरीका है जो मैं लिखती हूँ, 5x² माइनस 1/3x प्लस 3 प्लस 3x² प्लस 6 प्लस 2x माइनस 2। ठीक है, सेम एक्सप्रेशन जो हैं, सेम लाइक टर्म्स जो हैं उनको सेपरेट आउट, 5x² प्लस 3x², this term and this term. Now if I am writing the next like terms, that is minus 1/3x, ये नहीं है, ये भी नहीं है, then plus 2x। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, 3 प्लस 6 माइनस 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, this comes out to be 8x²। now here you have to take the LCM। LCM लोगे तो 3 आएगा, -1 का x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -x आएगा, 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो दैट कम्स आउट टू बी 6x प्लस 9 माइनस 2 इज 7। इसको सॉल्व करेंगे 8x² तो दिस कम्स आउट टू बी 6x माइनस x इज 5, तो 5x/3 प्लस 7। इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। अगर इस तरीके से सॉल्व नहीं करने, दूसरे तरीके से आपको सॉल्व करना है तो आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। 5x² माइनस 1/3x कैन बी रिटन एज x/3 प्लस 3। सेकेंड टर्म देखो तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट एक्सप्रेशन आएगा 3x² के नीचे, x की कोई टर्म नहीं है तो दैट विल बी लेफ्ट एज ब्लैंक, वहां पर आप खाली छोड़ दो, दिस इज 6। ठीक है, अब थर्ड टर्म में 2x है, x के नीचे आपकी कोई टर्म नहीं है, यू कैन राइट 0 ओवर हियर और हियर ऑल्सो यू कैन राइट 0। ठीक है, 0 भी लिख सकते हैं। 2x माइनस 2, नाउ दिस इज 7 प्लस का और यहां पर आ गया आपका 8x²। अब इसको सॉल्व करना है, 2x माइनस x/3 दैट कम्स आउट टू बी 6x माइनस x divided by 3, here comes out to be 5x/3। in this way you can solve the question। ठीक है, इस तरीके से जो है वो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज add 7/2x³ minus 1/2x² plus 1/3। this is the first expression।
Second expression is 3 by 2 x cube plus 7 by 4 x square minus x plus 1 by 3. This expression contains 3 terms. This expression contains 4 terms and this contains 3 terms. ठीक है, again. Now, I write the first expression, that is 7 by 2 x cube minus 1 by 2 x square plus 5 by 3 plus 3 by 2 x cube plus 7 by 4 x square minus x plus 1 by 3 plus 3 by 2 x square minus 5 by 2 x minus 2. This is the expression which I have to solve. Now the first term is x cube. So 7 by 2 plus 3 by 2 x cube हो गया. राइट टर्म्स को सेपरेट कर लिया और उनके कोफिशिएंट को मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया. नाउ इन द सेकेंड टर्म दिस इज माइनस 1 by 2. ठीक है, फिर क्या है, प्लस 7 by 4 प्लस 7 by 4 एंड थर्ड इज प्लस 3 by 2 एक्स स्क्वायर. ठीक है, थर्ड एक्सप्रेशन क्या है, थर्ड टर्म कौन सी है, लाइक टर्म की x. तो दिस इज -1, दिस इज -5 by 2 -5 by 2 x. Now fourth 5 by 3 plus 1 by 3 minus 2. Count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 टर्म्स होनी चाहिए. तो 2 plus 3 5, 5 plus 2 7, 7 plus 3 10. 10 है, तो मेरी इसका मतलब यह है कि यहां से मैंने यहाँ पर उतार लिया, सारी एक्सप्रेशन उतार ली हैं, कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो मिस नहीं हुई है. ठीक है, अब दोनों का बेस सेम है तो न्यूमरेटर को मैं डायरेक्टली ऐड कर सकती हूँ. दैट कम्स आउट टू बी 10 by 2 x cube. 10 by 2 can be written as 5x cube. Right? Now here terms are different, so this take the LCM, that is 4. 4 LCM लोगे तो here comes 2 plus 7 plus 6 x square. Similarly here also you have to take the LCM. 2, this is -2 and -5x, and here also you have to take the LCM, that is 3. 5 plus 1 minus 6. ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी 5x क्यूब. 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 plus 6 is 11. 11 by 4 x square minus here 7 by 2 x, and this is plus 6 minus 6, आंसर comes out to be 0. तो यहां पर आपको लिखने की इसको जरूरत नहीं है. ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस तो हमने देख लिया कि किस तरीके से परफॉर्म करते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. Subtraction of algebraic expression can be better understand with the help of the example. ठीक है, so the very first question is subtract this expression from this expression. ठीक है, subtract करना है हमको फर्स्ट एक्सप्रेशन में से सेकंड एक्सप्रेशन को. फर्स्ट एक्सप्रेशन को subtract करना है सेकंड में से. So write the second expression first, that is 7y square minus 2y plus 10. इसमें से हमें किसको माइनस करना है, फर्स्ट एक्सप्रेशन को माइनस करना है. तो माइनस ऑफ 2y स्क्वायर प्लस 1 by 2y minus 3. ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जिस एक्सप्रेशन को हमें माइनस करना है, इस एक्सप्रेशन को मुझे माइनस करना है तो इसके आगे मैंने क्या लगाया, माइनस साइन लगाया. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इस एक्सप्रेशन की हर एक टर्म का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा. नाउ अगर मैं हर एक टर्म का साइन चेंज कर दूं तो दिस एक्सप्रेशन विल बिकम 7y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 10. यहां मैंने लगा दिया प्लस साइन, माइनस माइनस प्लस, इसका साइन चेंज करना है तो दिस विल बिकम प्लस 2y स्क्वायर
दिस विल बिकम प्लस था पहले, अब माइनस हो गया, जो माइनस था वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, दिस वे। नाउ सेपरेट द लाइक टर्म्स फर्स्ट, 7y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस माइनस 2y minus 1 by 2y. Now plus 10 plus 3. Now this will become 9y square. यहां पे मैं एलसीएम लेती हूं, प्लस का साइन, 9y स्क्वायर के बाद क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, एलसीएम लिया 2, तो दिस विल बिकम माइनस 4 माइनस 1 एंड दिस मल्टीप्लाई बाय y प्लस 13. So the answer comes out to be 9y square minus 5 by 2y plus 13. In this way you can solve the question. और another method, another way क्या है, दूसरा वही चीज कि फर्स्ट एक्सप्रेशन है दैट इज 7y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 10, इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो लाइक टर्म्स इसी के नीचे लिखते जाएंगे जो भी साइन है, माइनस 2y स्क्वायर प्लस 1 बाय 2y माइनस 3. अब मुझे इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन चेंज कर दो, दिस विल बिकम प्लस, दिस विल माइनस एंड दिस विल बिकम प्लस. नाउ अब एक्सप्रेशन को सॉल्व करते वक्त जो ओरिजिनल साइन थे वो आपको कंसिडर नहीं करने, जो साइन चेंज होकर के आए हैं वो साइन आपको कंसिडर करने हैं और उसके बाद आपको सॉल्व करना है. तो 10 प्लस 3 इज 13, माइनस 2 माइनस 1 बाय 2, माइनस 2 एंड माइनस 1 बाय 2, एलसीएम लो 2 माइनस 4 माइनस 1, सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस 5 बाय 2. तो इधर आ जाएगा माइनस 5 बाय 2y और इधर 7 है और ये भी प्लस का 2 है, तो दिस विल बिकम्स 9y स्क्वायर. इस तरीके से आप एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हो. वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना चाहूंगी, चाहे आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को राइट टू लेफ्ट ऐड करो या लेफ्ट टू राइट ऐड करो, दैट डजंट मैटर, आंसर विल कम आउट टू बी सेम. आंसर जो है वो सेम ही आएगा, बिकॉज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में यहां पर हमने क्या किया है, लाइक टर्म्स को एक लाइन में लिखा, एक कॉलम में लिखा है, अनलाइक टर्म्स को हमने अलग कॉलम में लिखा है, ठीक है. मींस 7y स्क्वायर एंड 2y स्क्वायर आर लाइक टर्म्स, तो हमने इसको क्या बना दिया, एक कॉलम बना दिया. अब 7y स्क्वायर और माइनस 2y स्क्वायर, जो 2y जो है दे आर अनलाइक टर्म्स, तो उनका मैंने कॉलम क्या बना दिया, सेपरेट बना दिया. तो आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. नाउ बेस्ड ऑन दिस वी आर गोइंग टू सॉल्व one more problem. Now the next problem is subtract first algebraic expression from the second algebraic equation. ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोई भी मेथड, अभी मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको दो तरीके बताए थे कि या तो आप लिख के सिंपल वैसे सॉल्व कर लो, ठीक है, नहीं तो आप सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखो और उसको वैसे सॉल्व कर लो. तो मैं इसको सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख के वैसे सॉल्व करती हूँ. तो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, दैट इज 12 by 5 x square yz minus 3 by 5 xyz plus 2 by 3 x square y. ठीक है, अब क्या करना है, 3 by 2 x square y, इसको इस वाले एक्सप्रेशन को माइनस करना है. तो हम मैं पहले देखती हूँ 3 by 2 x square y, इससे रिलेटेड कोई लाइक टर्म है, यस दिस इज द लाइक टर्म, सो राइट इट हियर 3 by 2 x square y. No sign is put in front of it, so by default it is having the plus sign. तो इसका क्या है, प्लस साइन है. Now the next term is 4 by 5 y. y की कोई टर्म है नहीं है, तो 4 by 5 y जो है वो हम सेपरेट लिख लेंगे, that is 4 by 5 y. ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया. Now the third term is minus 1 by 3 x square yz, that is equal to this minus 1 by 3 x square y z. यहां कोई टर्म नहीं है तो पुट इट 0. अब क्या करना है, मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी, इसका साइन चेंज कर दूंगी, दिस विल बिकम प्लस, दिस विल बिकम माइनस एंड दिस विल बिकम माइनस. ठीक है, अब क्या करेंगे, 12 by 5 प्लस 1 by 3, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, दैट कम्स आउट टू बी 15, 12 3 36 प्लस 5, दिस कम्स आउट टू बी 41 by 15. So this is 41 by 15 x square y z. ठीक है, नाउ सेकेंड टर्म जो है वो मेरी एज इट इज है, क्योंकि उसमें कोई भी दूसरा एडिशन वगैरह नहीं होना, तो राइट
it as same, that is minus 3/5 xyz. इसमें ये ध्यान रखना कि यहां पर अगर कोई टर्म नहीं है तो इसका साइन चेंज मत कर देना, ठीक है, क्योंकि वो एक अलग एक्सप्रेशन है। ये पूरा जो सेकंड एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करना है सिर्फ उसी के साइन चेंज होंगे, उसके अलावा दूसरे साइन चेंज नहीं होंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, 0 लिखा था, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। किसी नंबर के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी हमने पढ़ा था कि किसी नंबर के अंदर अगर हम 0 ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी वही सेम नंबर आएगा, और उस नंबर में से अगर मैं 0 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो भी आंसर वही सेम नंबर आएगा, ठीक है। अब यहां पर आता है बात थर्ड एक्सप्रेशन की। थर्ड एक्सप्रेशन में क्या है, 2/3 है और -3/2 है। तो इसमें मुझे क्या करना है, 6 एलसीएम लूंगी, हियर कम्स आउट टू बी 4, हियर कम आउट टू बी 5। बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 9 - 4 इज 5। साइन कौन सा किसका आएगा, जो भी बड़ा नंबर है उसका जो साइन है। 9 का साइन क्या है, माइनस है, तो पुट माइनस इन फ्रंट ऑफ इट, दैट इज कम्स आउट टू बी -5/6। तो यहां आ जाएगा मेरे पास -5/6 x² y. Now here it comes out to be -4/5 y. अब कहोगे इसमें मैडम आपने साइन चेंज नहीं किया, यहां पर भी तो सिंगल टर्म थी, यहां साइन चेंज क्यों किया? क्योंकि ये जो टर्म है, दिस टर्म इज रिलेटेड टू द सेकेंड एक्सप्रेशन विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। ये टर्म जो है ये सेकेंड एक्सप्रेशन की टर्म है जिसको सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट एक्सप्रेशन में से, इसीलिए इसका साइन चेंज किया है। वो किसकी टर्म थी, वो फर्स्ट एक्सप्रेशन की टर्म थी, इसलिए उसका साइन चेंज नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखना। इन दिस वे यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. The next question is, now the question can also come in the form of the statement. The statement is subtract the sum of this and this from 5. अब क्या करना है, 3 expressions हैं इसमें, first expression, second expression and this is the third one. So अब क्या करना, subtract the sum of, sum किसका subtract करना है, इसका और इसका sum calculate करना है। जो सम आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, 5 में से। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द सम, दैट इज 2x - x² + 5 नाउ -4x - 3 + 7x², ठीक है। तो इसका क्या आएगा, -2x + 6x² + 2, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, सम आ गया किसका, इस एक्सप्रेशन का और इस एक्सप्रेशन का। अब इस एक्सप्रेशन को जो सम आया है उसको सब्ट्रैक्ट करना है 5 में से। 5 में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, यहां पर -2x जो है वो इसकी टर्म नहीं है, +6x² भी इसकी टर्म नहीं है, +2। अब साइन चेंज करते हैं, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, तो दिस कम्स आउट टू बी +3 + 2x - 6x². So the answer of the question is, हमेशा जो है वो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं किसके फॉर्म में, डिक्रीजिंग ऑर्डर की फॉर्म में। जनरली जो है, देखो बुक वाले ने यहां पर कैसे भी लिखा हो एक्सप्रेशन, दैट डजंट मैटर, ठीक है, उसको कोई मैटर नहीं करता। वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए एक्सप्रेशन में क्या करता है, पावर को आगे पीछे अरेंज कर देता है। बट लेकिन जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आपको आंसर लिखते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो हायर पावर है वहां से आप लोअर पावर की तरफ मूव करेंगे। मींस यहाँ पर x की पावर क्या है, 2 है, यहाँ पर x की पावर क्या है, 1 है, यहाँ पर कोई पावर नहीं है, इट मींस यहाँ पर क्या है, x की पावर 0 है। एक्सपोनेंट एंड पावर के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है दैट इज इक्वल टू 1। सो 3 कैन बी रिटन एज, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3x की पावर 0 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर मैंने क्या किया है, आंसर को लिखा है x की डिक्रीजिंग पावर की फॉर्म में। x की पावर 2 इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन, x की पावर 1 इज द सेकेंड टर्म एंड x की पावर 0 इज द थर्ड टर्म। तो आंसर विल कम -6x² + 2x + 3. This is the answer of this particular question. Now, depending upon this, we are going to solve the last question for today. Next question is,
सब्ट्रैक्ट 3x माइनस 4y माइनस 7z। सब्ट्रैक्ट करना है इस एक्सप्रेशन को फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द सम। सम इज x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 4x प्लस 9y माइनस 11z। ठीक है, इसका सम कैलकुलेट करते हैं। दोनों का साइन डिफरेंट है, तो 4 माइनस 1 इज 3। साइन किसका बढ़ना, कौन सा नंबर बढ़ा था, x का 4 बढ़ा था, तो माइनस 3x। 9 माइनस 3 इज 6। 6 में से अब नंबर किसका कौन सा बढ़ा था, 9 बढ़ा था, उसका साइन क्या था, प्लस, तो हियर कम्स आउट टू बी 6y। नाउ 11 माइनस 2, दोनों के साइन डिफरेंट है इसलिए सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा। 11 माइनस 2 इज 9। 11 का साइन क्या है, माइनस है, तो आंसर आ जाएगा माइनस 9z। अब इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, सो राइट इट माइनस 3x प्लस 6y माइनस 9z। 3x माइनस 4y माइनस 7z। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज कर दो, प्लस प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, दिस विल minus 3x minus 3x, this is minus 6x. 6 plus 4, that is 10y. And minus 9 plus 7z, दोनों के साइन डिफरेंट हैं तो नंबर को माइनस कर दो। 9 minus 7 is 2। 9 का साइन क्या है, प्लस साइन है, तो माइनस साइन आ जाएगा। 9 का साइन माइनस है तो आंसर में आ जाएगा माइनस 2z। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। Try to solve more and more question based on the addition, based on the topic of today. Still, if you are facing any problem in the question, please post your query in the comment box. Please like, share and subscribe the channel for the video notification. Thank you.